شب برات کا موقع ہے. اس موقع پہ عبادت کا ایک شوق ایک جذبہ رہتا ہے. اسی لیے یہ نماز جو 4 رکعت خاص نماز ہے، بڑی فضیلت والی نماز ہے. اس کا عملی طریقہ یعنی کیسے ادا کریں گے وہ آپ کو کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح، جسے ہم تسبیح کی نماز کہتے ہیں. کیونکہ تسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تسبیح ہے. تسبیح کیا ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اس نماز کی بڑی فضیلت ہے. اس نماز کے ادا کرنے سے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، قصدن جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ اور سہون بھول سر انجانے میں کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، خفیہ گناہ، اعلانیہ گناہ، ہر طرح کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. بالکل آپ دھل جائیں گے، سمجھیے. اور اس کی فضیلت بہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزانہ اس نماز کو ادا کریے. نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن، وہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں 1 دن، سال میں بھی نہ ہو سکے پوری زندگی میں کم سے کم 1 بار اس نماز کو ضرور ادا کر لیجئے. اسی لیے کوئی بھی موقع، یہ تو شب برات کا موقع ہے، اگر آپ سے میسر ہو، آپ کو وقت ملے، روزانہ پڑھیے نا، بہت ثواب ملے گا، بڑی فضیلت ہے. اب اس نماز کی ایک تسبیح ہے، اسی لیے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. تسبیح کی نماز اسی لیے کہتے ہیں، تسبیح ہے اس میں. تسبیح کیا ہے اسے یاد کر لیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سے ایک بار تسبیح دہرا دیتا ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح ہے، مختصر تسبیح، جسے ہم جو ہے تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں. اب اس نماز میں اسی تسبیح کو کل 4 رکعت نماز ادا کریں گے. 4 رکعت نماز ایک سلام سے ادا کریں گے. ایک سلام سے 4 رکعت نماز ادا کریں گے. اور ٹوٹل تسبیح 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہونا چاہیے. ہر ایک رکعت میں، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ یہ تسبیح ہونی چاہیے. کم بھی نہیں کریں گے، زیادہ بھی نہیں کریں گے. اگر کمی زیادتی کریں گے پھر سمجھیے کہ فضیلت سے آپ محروم ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہ عدد ضرور یاد رکھیے گا. اور کہاں کہاں کتنی مرتبہ کب پڑھیں گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اس سے پہلے اس نماز کا وقت سمجھ لیجئے، کب ادا کریں گے. شب برات جو ہے یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، سورج کے ڈوبنے سے لے کر، جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم جیسے شروع ہوتا ہے، شب برات شروع. اب شب برات میں اگر آپ اس نماز کو ادا کرنا چاہیں تو مغرب کے وقت سے لے کر فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے، نماز نہیں، نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک، فجر کی نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے تک آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. اگر کر لیں گے تو پھر سمجھیے کہ یہ شب برات میں آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، جو اور فضیلت بڑھ جائے گی. ورنہ یہ نماز تو آپ پوری زندگی میں جس وقت چاہیں ادا کر سکتے ہیں، دن میں بھی، رات میں بھی، جس وقت چاہیں. صرف مکروہ ٹائم، جن اوقات میں، جن ٹائمز میں نماز پڑھنا منع ہے، ان ٹائم کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جب چاہے پڑھ لیجئے. اب اس نماز کے 2 طریقے ہیں. ان میں سے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. 2 طریقہ ہے. یہ جو بتا رہا ہوں یہ سب سے آسان ہے اور بہت، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کو الجھانے والی چیز نہیں ہے. بہت آسانی سے یہ طریقہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کو ادا کر سکتے ہیں. اب ذرا طریقہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. نیت کریں گے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. زبان سے لمبی چوڑی نیت بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں سوچئے میں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں. کتنی رکعت کیا ہے چھوڑ دیجئے سب، صرف اتنے ہی دل میں سوچئے میں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریے. کیسے؟ نیت دل میں سوچ لیجئے، نیت کر لیجئے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیے، باندھ لیجئے. اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب ثنا پڑھنے کے بعد وہ جو تسبیح میں نے کہا ہے، جو صلاۃ التسبیح کی تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھیں گے. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
इस तरह करते करते कितनी मर्तबा पढ़ेंगे? 15 मर्तबा पढ़ेंगे। याद रखिएगा, 15 मर्तबा सना पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। जब 15 मर्तबा मुकम्मल हो जाए, यहीं पर एक बीच में छोटी सी बात बता दूं, ये जो हिसाब रखेंगे 15 मर्तबा, कोई उंगली पे इस तरह गिनेंगे नहीं, इस तरह उंगली पे हिसाब करना मना है। उसके लिए आप जो यहीं हाथ अभी रखेंगे, जो अपना हाथ को रखे होंगे, बांधे होंगे, वहीं पर उंगली को जरा दबाते जाइए। एक मर्तबा पढ़ें, एक उंगली को दबा दीजिए, दूसरी मर्तबा पढ़ें, एक और उंगली को दबा दीजिए, तीसरी मर्तबा पढ़ें, एक और उंगली को दबा दीजिए। फिर जब 5 उंगली दब जाए तो उसके बाद जब एक मर्तबा और पढ़ें तो एक उंगली जरा हल्का कर दीजिए, फिर एक उंगली और हल्की कर दीजिए। इस तरह करते करते आप हिसाब रख सकते हैं। डायरेक्ट शुमार करना यह मकरूह है, इसीलिए आप इशारतन याद रखिएगा। और अगर इस तरह शुमार नहीं करते हैं, दिमाग में याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है 15 मर्तबा पढ़ेंगे। जब 15 मर्तबा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद पहली रकात है। अब उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब ये जो क़िरात है, सूरह फातिहा है, आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, दुआ है यानी तस्बीह है, आमीन है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता कहिए, यही बेहतर है आपके लिए। सब आहिस्ता, सिर्री क़िरात करिए, आहिस्ता से पढ़िए। फिर उसके बाद जब आमीन कह के मुकम्मल कर लेंगे, सूरह फातिहा मुकम्मल है, अब उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, कोई सी भी सूरा, यहां तक के, क्योंकि ये नफिल नमाज है इसीलिए उलमा ने, फुकहा ने किताबों में लिखा है, अगर आप एक सूरत को भी हर रकात में अदा करेंगे, नफिल नमाज में, पहली रकात में जो सूरा पढ़े थे दूसरी रकात में वही सूरा पढ़ते हैं, कोई हर्ज नहीं, मकरू तक नहीं। क्यों? क्योंकि ये नफिल नमाज है। ठीक है। अब इसीलिए जब आपको वक्त कम है, आपके आसानी के लिए ज्यादा देर आप खड़े नहीं हो पाएंगे, या कोई आपको बीमारी, कोई दिक्कत है, कोई वजह भी नहीं है, ऐसे ही आप आसानी के लिए चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में जो सबसे छोटी सूरा है वो पढ़ लीजिए, जो आपको याद है। जैसे इन्ना आतोइना याद है, या कुल हु अल्लाह, सबको तो याद होती है ये सूरा। जैसे सूरह इखलास कहते हैं हम, क्या है? अब बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ लीजिए। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब जब सूरा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अब फिर वही तस्बीह जो सलातु तस्बीह की है, तीसरा कलमा फिर 10 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा आप पढ़ चुके थे सना के बाद, अब क़िरात के बाद, कुरान की तिलावत के बाद, सूरा वगैरह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर पढ़ेंगे, वही तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरह 10 मरतबा पढ़ेंगे। अब ये कितना हो गया? 15 मरतबा पहली मरतबा सना के बाद, फिर ये 10 मरतबा कितना हो गया? 25 मरतबा। अब जब ये 10 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को चले जाएंगे। अब रुकू में जाने के बाद सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा हो, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जो आपसे हो सके पढ़िए। आसानी के लिए 3 मरतबा पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं। अब रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद अब इसी तस्बीह को, जो सलातु तस्बीह की तस्बीह है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको 10 मरतबा पढ़िए। कितना हो गया? 25 मरतबा हो चुका था। फिर ये 10 मरतबा, कितना हुआ? 35 मरतबा। जब रुकू से आप उठ जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर उसके बाद रब्बना लकल हम्द। उसके बाद अब फिर इस तस्बीह को अदा करेंगे जो सलातु तस्बीह की है। कितनी मरतबा अदा करेंगे? फिर 10 मरतबा। कितना हुआ था? 35 मरतबा हुआ था। फिर ये 10 मरतबा खड़े होने के बाद, रुकू से उठने के बाद कितना हो गया? 45 मरतबा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को चले जाएंगे। अब जब सजदे को चले जाएंगे तो सजदे में जाने के बाद पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। कितनी मरतबा? 3 मरतबा पढ़ लीजिए। अब सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर वही तस्बीह जो सलातु तस्बीह की है, तीसरा कलमा है, उसको आप अदा करेंगे 10 मरतबा। कितना हो गया? 45 मरतबा हो चुका था, ये 10 मरतबा, 55 मरतबा, 55 मरतबा। अब पहला सजदे में जब 10 मरतबा पढ़ लेंगे, मुकम्मल हो जाए, तो बैठ जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। अब बैठने के बाद पहले सजदे से, जैसे मिसाल के तौर पे पहले सजदे से आप उठकर बैठ गए,
अब बैठने के बाद जैसे बैठेंगे आप, सबसे पहले 10 मरतबा इसी तस्बीह को अदा करिए, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस तरह करके 10 मरतबा। जब 10 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को जाएंगे। अब जो 10 मरतबा हुआ था, कितना 55 हुआ था, फिर बैठकर 10 मरतबा कितना हुआ 65 मरतबा। अब जो सजदे को जाएंगे दूसरे सजदे में, पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ लेंगे। अब कितना हो गया, 65 में 10 मिला दीजिए 75 मरतबा। एक रकात में 75 मरतबा हमें अदा करना था और ये हो गया 75। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए और एक रकात आपकी मुकम्मल, सलातु तस्बीह में एक रकात आप पढ़ चुके हैं। अब खड़े होने के बाद हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद अब सबसे पहले आप किरात करेंगे। क्या किरात करेंगे, पहली रकात नहीं है इसीलिए सना भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सना पहली रकात के लिए होती है, और दूसरी रकात है इसीलिए आप ताउज़ भी नहीं पढ़ पाएंगे, आउज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आउज़ु बिल्लाह भी पहली रकात के लिए है। अब क्या है, बिस्मिल्लाह, खड़े होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जैसे ही खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए हाथ बांध लेंगे, सबसे पहले 15 मरतबा इसी तस्बीह को अदा करेंगे। 15 मरतबा, जैसे आप सना के बाद पढ़े थे 15 मरतबा पहली रकात में, वैसे ही सबसे पहले, क्योंकि सना तो पहली रकात में है, दूसरी रकात में सना नहीं है, तीसरी रकात में सना नहीं है, चौथी रकात में भी सना नहीं पढ़ेंगे, सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात के लिए है। इसीलिए आप दूसरी रकात में खड़ा होने के बाद सना जब नहीं है तो अब डायरेक्ट आ जाएंगे तस्बीह पे, जो तीसरा कलमा है सलातु तस्बीह की तस्बीह है, कितनी मरतबा, 15 मरतबा। अब जब 15 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो अब ये आपके लिए दूसरी रकात है, इसीलिए औज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि औज़ु बिल्लाह पहली रकात के लिए है। अब क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी खड़े होने के बाद 10 मरतबा जो है 15 मरतबा पढ़ेंगे डायरेक्ट, 10 नहीं 15 मरतबा। अब 15 मरतबा पढ़ने के बाद जब 15 मरतबा मुकम्मल हो जाए ये दुआ सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, उसके बाद अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इस तरह करके पूरा सूरह फातिहा, फिर उसके बाद आमीन, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद कोई भी सूरा। अब उसके बाद फिर 10 मरतबा ये जो है तस्बीह को अदा करेंगे, जो सलातु तस्बीह की तस्बीह है। अब दूसरी रकात में कितना हुआ, खड़े होने के बाद फौरन आप पढ़े थे 15 मरतबा, अब किरात करने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे, कितना हुआ 25 मरतबा। फिर इसी तरह रुकू को जाएंगे, रुकू से उठेंगे, सजदे को जाएंगे, बिल्कुल सेम तरीका। इसी तरह करके आप फिर दूसरी रकात में भी 75 मरतबा, जब दूसरे सजदे में जाएंगे तो 75 मरतबा तस्बीह हो ही जाएगी। अब ऐसी सूरत में 2 रकात आप हो जाए तो बैठ जाएंगे। दूसरी रकात में बैठकर क्या पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जब तशहुद मुकम्मल हो जाए तो खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए। अब तीसरी रकात में भी सना वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 15 मरतबा फिर ऐसा ही करेंगे जैसे दूसरी रकात में हुआ था। 15 मरतबा इसी तस्बीह को अदा करेंगे, फिर बिस्मिल्लाह, अब औज़ु बिल्लाह भी नहीं है, बिस्मिल्लाह है, बिल्कुल सेम जैसे दूसरी रकात में हुआ था। फिर इसी तरह तीसरी रकात जब मुकम्मल हो जाए, चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं, सेम वही करिए जो उससे पहली रकात में, दूसरी तीसरी रकात में आपने जैसा किया था बिल्कुल वैसे ही करिए। अब इस तरह करके चौथी रकात में बैठिए, अत्तहियात पढ़िए, तशहुद पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर उसके बाद दुआ पढ़िए, जो भी दुआ याद है आपको, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुद्दुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, या कोई और दुआ, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, जो भी आपको शॉर्टकट लगे, जो भी आपको आसान लगे, उसी एतबार से आप दुआ पढ़िए। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक तरफ सलाम फेरिए, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाईं तरफ सलाम फेरिए। आपकी नमाज कंप्लीट, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। और ये बड़ी फजीलत वाली नमाज है, इसको ज़रूर अदा करिए, ये बहुत ज़्यादा सवाब है। और इसमें मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, अगर किसी से कमी हो जाए, ज़्यादती हो जाए, क्या करेगा नहीं करेगा, उसके लिए फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसीलिए मैं बात यहीं पर ख़त्म
کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے. آمین.